یسوع مسیح کے زندہ جلالی پر فضل نام میں سب کو اسلام. کتنے لوگ آج صبح خوش ہیں؟ پریز دی لارڈ. کچھ لوگ تھوڑے خوش ہیں, بڑے ڈھیلے لگ رہے ہیں. آئے دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے. خدا کا پاک روح کثرت سے جنبش کر رہا ہے. لیٹس ویلکم دی ہولی اسپرٹ. پریز دی لارڈ. سب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. ہالےلویا. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جو خداوند نے میری اور آپ کی زندگی میں بخشا, تاکہ ہم مل کر یسوع کے نام کو عزت اور جلال دیں. آج کے اس خوبصورت لمحہ کے لیے میرے عزیزو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. جب صبح اٹھتے سار خداوند کا شکر ادا کیا کریں خوبصورت دن کے لیے جو خود نیا دن خداوند نے آپ کی زندگی میں بخشا. جب شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے نام سے دن کا آغاز کریں گے تو برکت پائیں گے. پریز دی لارڈ. ہالےلویا. ہالےلویا. کتنے لوگ آج خوش ہیں؟ پریز دی لارڈ. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہم بڑے خوبصورت مہینے کے اندر انٹر ہوئے. نہ صرف خوبصورت مہینہ ہے بلکہ بلیسڈ مہینہ ہے, بابرکت مہینہ ہے, خوشی سے بھرا ہوا ہے ہمارے لیے کہ میرا اور آپ کا منجی, میرا اور آپ کا بچانے والا, چھڑانے والا, کفارہ دینے والا اس دنیا میں آیا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں اور پھر سیلیبریٹ بھی کر سکیں. ہالےلویا. پریز دی لارڈ. تو میری طرف سے آپ سبوں کو جتنے بھی چرچ میں موجود ہیں ویری ویری میری کرسمس. یہ کرسمس کا مہینہ آپ سبوں کے لیے, آپ کے خاندانوں کے لیے برکت, ترقی, سرفرازی کا وسیلہ بنے. ہالےلویا. اور میری دعا ہے کہ اس کرسمس کے سیزن کے اندر ہم کبھی بھی کرائسٹ کو مس نہ کریں. آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں بہت سے لوگ کرسمس تو منا رہے ہیں, سالوں سال تہوار کے طور پر کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, لیکن اکثر اوقات وہ کرسمس کی سیلیبریشن میں سے کرائسٹ کو ہی بھول جاتے ہیں, مطلب ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم کیوں کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک تہوار کے طور پر, رسمی طور پر کرسمس کو مناتے ہیں اور دیٹس اٹ. ہر سال ایسے ہی ہو رہا ہے. بہت سے سال گزر گئے لیکن ان کی زندگی کے اندر کرسمس ایسے ہی منایا جا رہا ہے. لیکن میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کرسمس منانے کا مقصد یہی ہے, وہ خوشی, وہ شادمانی کہ میرا اور آپ کا منجی خدا نے کلام کے اندر, اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت دیکھیں, جان 3:16, تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. اور جو پلان آف ریڈمپشن تھا, مخلصی کا منصوبہ تھا, وہ اسی خوبصورت جو ہے کرسمس کے سیزن میں ہی سٹارٹ ہوا, جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یسوع مسیح جو ہے وہ کنواری مقدسہ مریم میں سے ہو کر اس دنیا میں آئے, انسانی شکل کو اختیار کیا, اور جب یسوع پیدا ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سو خوشی تھی, ہر سو نور تھا, ہر طرف ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی زندگیاں پھر تبدیل ہوئیں. اور آج بھی جو یسوع کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں پھر ان کی زندگی کے اندر سے سارا اندھیرا جاتا رہتا ہے, ان کی زندگی کی تاریکی یسوع نور میں بدل دیتا ہے. تو میرے عزیزو, اگر اس کرسمس کے موقع پر آپ چرچ میں بیٹھے ہیں یا لائیو اس وقت دیکھ رہے ہیں, اگر آپ محض رسمی طور پر کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں 2000 سال پہلے تو یسوع مسیح چرنی میں پیدا ہوا, بٹ آن دس کرسمس آپ یسوع کو اپنے دل میں دعوت دیجئے. اسے کہیے یسوع تو میرے دل میں آ. جب یسوع آپ کی زندگی میں آئے گا پھر ہی آپ کا حقیقی کرسمس ہوگا. ہالےلویا. کتنے لوگ اس بات پر متفق ہیں؟ پریز دی لارڈ. تو کرسمس کا مطلب ہے ٹو گیو, دینا. خدا نے اپنا بیٹا دے دیا, تو آپ ذرا چیک کیجئے آپ کیا کر رہے ہیں. تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں اس کرسمس کے موقع پر آپ خوشیوں کو بانٹیں, خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. بہت سے لوگ آپس میں تحائف بھی, تحفے بھی بانٹتے ہیں, لیکن آپ خوشیوں کو بھی بانٹیں. اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں تو آپ ضرور ان کی مدد بھی کریں تاکہ ہم سب مل کر یسوع کی برتھ کو سیلیبریٹ کریں. ہالےلویا. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے آئی ایم شائننگ اسٹار آف کرائسٹ.
प्रेज द लॉर्ड। यानी मैं मसीह का चमकता हुआ सितारा हूं। कितने मसीह के चमकते हुए सितारे बैठे हुए हैं? मैं तो मसीह की चमकती हुई स्टार हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे मत्ती की इंजील उसके दूसरे बाब के अंदर। जितने भी आप यहाँ पर बैठे हैं मेरे अजीजों, इन आयाम के अंदर आप मत्ती की इंजील उसके पहले 2 बाब को पढ़ें, लूका की इंजील पहले 2 बाब को पढ़ें, तो यू विल गेट टू नो द स्टोरी ऑफ क्रिसमस। आप दोबारा से क्रिसमस की इस कहानी को जानेंगे कि खुदा का कलाम क्या कहता है। आइए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मत्ती की इंजील उसके दूसरे बाब की। पहले हम पहली 2 आयत देखेंगे, उसके बाद हम 9वीं से लेके 12वीं आयत भी पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। मेरे अजीजों, आप स्कूल के अंदर, संडे स्कूल के अंदर बचपन से ये टैब्लो, ये प्ले के अंदर भी आप स्टोरी को देखते आए हैं कि कैसे हम देखते हैं। और अक्सर औकात हम टैब्लोज में तो 3 मजूसी बनाते हैं और लोग समझते हैं कि शायद देवर ओनली 3 वाइज मैन, लेकिन आज आप कलाम में देखें कि यहाँ पर लिखा है कई मजूसी। वो यहाँ पर जो है अमाउंट मेंशन नहीं है, यहाँ पर लिखा है कई मजूसी। अब ये मजूसी जो है इन्हें कैसे पता चला कि वहाँ पर यीशु बादशाह जो है उसकी बर्थ हुई? यहाँ पर कहानी के इब्तिदा के अंदर ही हम देखते हैं कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि हम पूरब में उसका सितारा देखकर उसे सजदा करने आए हैं। यानी वो स्टार, जो चमकता हुआ स्टार आसमान पर चमक रहा था, जब वो उसकी डायरेक्शन के अंदर, जब वो उस तारे को देखते हुए उसके पीछे चलते हुए आए, तो क्या है दैट्स मीन आज जो हम सीख रहे हैं वो ये है कि सितारा, वो जो स्टार था वो उनको डायरेक्शन दे रहा था, उनको बता रहा था कि उन्होंने कहाँ पर जाना है। आज मैंने आपके साथ टॉपिक डिस्कस किया, आई एम स्टार ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई एम शाइनिंग स्टार ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि मैं मसीह का चमकता हुआ सितारा हूँ। अगर आप मसीह के चमकते हुए सितारे हैं तो मेरे अजीजों, एक लम्हा के लिए अपनी जिंदगी के अंदर चेक कीजिए कि क्या आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए एक चमकते हुए सितारे की मानद है, एक डायरेक्शन की मानद है, या आप इर्द गिर्द के लोगों के लिए तारीकी का वसीला बने हुए हैं। आपका नाम स्टार है, लेकिन आपके अंदर से कोई रोशनी नहीं निकल रही, कोई नूर नहीं निकल रहा। बस एक जगह पर आप स्टिल खड़े हैं, ना किसी को डायरेक्शन दे पा रहे हैं और ना किसी के लिए फायदा मंद साबित हो रहे। मेरे जीसो, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ मसीह तो लगाया हुआ है, लेकिन उनके काम मसीह जैसे नहीं है। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि नाम के साथ मसीह लगाने से आप मसीही नहीं बन जाएंगे, मसीह जैसे नहीं बन जाएंगे। तब ही आप मसीह जैसे बनेंगे जब आपकी जिंदगी मसीह के कलाम के मुताबिक होगी, जब आपका उठना बैठना, अंदर आना बाहर जाना मसीह के कलाम के मुताबिक होगा। हालेलुया। मेरे चीज़ों, हम देखते हैं कि जैसे ही क्रिसमस के महीने का आगाज होता है, बहुत से ऐसे लोग हैं, they have their own way of celebration। उनके जश्न मनाने का तरीका ही अलग है। उनके मंसूबे शुरू हो जाते हैं कि उन्होंने किस तरह से पार्टी करनी है, किस तरह से उन्होंने जश्न मनाना है, या शराब नोशी करनी है, या बुरे काम करने हैं। This is not the way of celebrating Christmas for Christians। जितने मसीही जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आपका रवैया भी यही था, अगर आपके प्लान्स भी यही थे, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिस इज नॉट अ वे। ये मसीह की बर्थ की सेलिब्रेशन ऐसी नहीं है। अगर आप मसीह की बर्थ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो यू हैव टू सेलिब्रेट
with joy. आपको खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटने की जरूरत है. अगर कोई अजीज, कोई रिश्तेदार आपके खानदान के अंदर आपसे नाराज है तो मेरे अजीजों इस महीना के अंदर आप जरूर, क्योंकि मेरे अजीजों कलाम में लिखा है वो सुलह और सलामती का, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि वो यहूदियों का बादशाह है और खुदा का कलाम भी हमें बताता है ही इज प्रिंस ऑफ पीस. अगर मेरे अजीजों हम प्रिंस ऑफ पीस की बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर हम उसकी सेलिब्रेशन के अंदर हैं, तो फिर क्यों हम नफरतों से भरे हुए हैं? फिर क्यों ना माफी की स्पिरिट हमारे अंदर है? मेरे अजीजों अफसोस के साथ किसी की डेथ हो जाए, आप चाहे सारी जिंदगी उसको मिले ना हो, लेकिन डेथ पर जाके बड़ा रौला पाना, बड़ा शोर डाल डाल के हम रोते हैं, ओ ये शख्स तो बहुत अच्छा था, ऐसे है वैसे है. फिर हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, खुशी छाड़ देती जाए, गमी नहीं छड़नी चाहिए. मेरे जैसा अच्छी बात है कि आप दूसरों के गम के अंदर शामिल हों, लेकिन आज मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक लम्हा का भी नहीं पता. आप कल की बाबत नहीं जानते कि कल सुबह आप उठे या नहीं, इसलिए जब सुबह उठते हैं शुक्र अदा किया करें कि खुदावंद तूने मेरी जिंदगी में ये नया दिन बख्शा. मैं आपको बताना चाहती हूँ इब्लीस ने आपके अंदर ना माफी की स्पिरिट को डाला हुआ है, गुस्से को डाला हुआ है, नफरत को डाला हुआ है और वो आपकी जिंदगी के अंदर बैठा हुआ है. मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ इस क्रिसमस के मौका पर आप माफी को अपनी जिंदगी में लें, आप गुनाहों से रिहाई पाएं, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर अगर हम देखें मत्ती की इंजील पहले बाब की 21वीं आयत के अंदर, तो वहां पर लिखा है उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा. मेरे जीसस सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, यीशु मसीह के आने का मकसद ही ये था कि आप गुनाहों से नजात पाएं, लेकिन आज भी आप गुनाहों के अंदर जकड़े हुए हैं, इब्लीस ने आपको घेरा हुआ है. तो फिर इस क्रिसमस के मौका पर हकीकी तौर पर क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, इस स्पिरिट के अंदर इग्नाइट हो जाए जो स्पिरिट लव की है. सबसे बड़ी मोहब्बत खुदा ने आपसे की, उसने पहले आपसे प्यार किया, उसने अपने बेटे को आपके लिए दे दिया, फिर वो हमें माफी का दर्श देता है. The time Jesus Christ was in this earth, जब यीशु मसीह इस दुनिया पर थे, क्या हुआ? लोग सता रहे थे, मार रहे थे, उसने कहा है बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं. यीशु ने हमें माफी का दर्श दिया. फिर खुदा के कलाम के अंदर अगर हम देखें तो उसने हमें सिखाया कि we have to give, हमें देना है. उसने कहा अगर 2 कपड़े हैं तो एक किसी को दे दो. यानी इन हालातों के अंदर अगर आप खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो अपने बारे में ना सिर्फ सोचें. कई लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचिए. आप दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों के लिए खुशी का सबब बनेंगे, दूसरों के लिए गम का सबब तो बहुत सारे एवं खामखाई बन जाते हैं. ऐसी बातें करके हम किसी की मुसीबत बढ़ाने के लिए बड़ी जल्दी पहल करते हैं, लेकिन किसी के गम को कम करने के लिए, मुसीबत को कम करने के लिए आप अहद कीजिए. आप दुआ में स्टैंड कर सकते हैं, आप दुआ में बढ़े. खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं. पिछले दिनों के अंदर नाइजीरिया के अंदर थे, खुदा के खादम पास्टर सब और पास्टर विल्सन भी हमारे साथ थे. जो बात मुझे उन लोगों की पसंद आई, गुर्बत थी, मट्टी थी, कोई कारपेट नहीं था जमीन पर. जब चलते थे तो ऐसे मट्टी उड़ती थी, लोग दूर उतरते थे. सिर्फ स्पेशल गेस्ट उस ऑडिटोरियम के पास जाते थे. जो वहां के लोकल लोग थे वो कई मील दूर अपनी बसों पर गाड़ियों को पार्क करते और पैदल उस कच्चे रास्ता पर पैदल कई मील चलकर वहां पर इबादत में पहुंचते. They don't care about the mud, वो मट्टी को नहीं देखते. और एक और बड़ी खूबसूरत बात उनकी,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ नहीं. They don't care about कि अब ये नहीं था कि खुदा के खादम अगर 9 बजे कलाम शुरू हुआ है 1 बज गया है तो घड़ियां ही देखते रहे, ओह भूख लग गई. नहीं मेरा अजीजों, खुदा के खादम रात 12 बजे तक भी वहां पर रहते तो एक शख्स भी उस पंडाल से बाहर नहीं जाता था. और इससे भी खूबसूरत बात जो मुझे वहां पर अच्छी लगी वो ये थी कि वो दुआ बहुत ज्यादा करते हैं. तो मेरा अजीजों, जब आप दुआ ज्यादा करेंगे तो फिर खुदावंद अपने आसमान को आपके लिए खोल देगा. मैंने वहां पर जाकर इस बात को महसूस किया कि हमारे लोग कम दुआ करते हैं. तो हमें भी जब भी कहीं पर भी हमें जाएं, हमें सीखने की जरूरत है. और जब आप ज्यादा से ज्यादा दुआ करेंगे तो खुदावंद आपके लिए अपने आसमान को खोलेगा. और जब वो दुआ करते हैं तो खुदा का पाक रूह, खुदा की हजूरी वहाँ पर मौजूद होती है. खुदावंद उनसे भी उतना ही प्यार करता है जितना खुदावंद आपसे भी प्यार करता है. आए हम मत्ती की इंजील उसके दूसरे बाब की नेक्स्ट वर्सेस पढ़ेंगे, 9वीं आयत से लेके 12वीं आयत तक. और यहाँ पर देखते हैं, लिखा है, वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था. वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे आकर गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया. पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो. मेरे चीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मजूसी जो सितारे को देख के यीशु के पास पहुंचने को आए थे, रास्ते में इब्लीस ने उनको ट्रैप करने की बड़ी कोशिश की. अगर आप पिछली वर्सेस को पढ़ें तो हम देखते हैं कि वहां पर उनको हेरोदेस बादशाह मिल जाता है और वो कहता है कि तुमने जैसे ही पता चले तो कहां पर आना है, मेरे पास आना है. लेकिन वो लोग सितारे की रहनुमाई में रहे. हम खुदाम के कलाम में यहाँ पर मैंने भी आपके लिए पढ़ा कि उस यहाँ पर लिखा है, वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए. और फिर क्या है, जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला. वो स्टार उनकी रहनुमाई करता रहा ताकि उनको राइट डायरेक्शन पर लेकर जाए. और फिर क्या है, जहां पर वो बच्चा यानी यीशु था वहां पर आकर रुक गया. और फिर वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसे सजदा किया. और उसके बाद अपने डब्बे खोलकर जो ऑफरिंग वो लेकर आए थे वो उन्होंने उसकी नजर की. यहाँ पर हम सीखते हैं कि स्टार उनको डायरेक्शन दे रहा था, लीडिंग टुवर्ड्स जीसस, उन्हें यीशु की तरफ लेकर जा रहा था. हम वापस उसी टॉपिक पे आएंगे. क्यों मैंने कहा आई एम अ शाइनिंग स्टार ऑफ जीसस. आपने भी बड़ी खुशी से कहा कि मैं भी मसीह का चमकता हुआ सितारा हूं. मेरे अजीजों, हम देखते हैं आज स्टार बनना बड़े लोगों को अच्छा लगता है. कई लोगों को सेलिब्रिटी स्टार्स पसंद होते हैं और वो हमेशा कहते हैं मैं फलां स्टार की तरह बनना चाहता हूं. हमारे अपने डिसलाइक्स और लाइक हैं. लेकिन मेरे अजीजों, अगर आप अपने आप को कहते हैं कि आप मसीह के चमकते हुए सितारे हैं तो फिर आपको भी जरूरत है जैसे ये सितारा उन मजूसियों को यीशु के पास लेकर गया. आज देखिए कि आपके इर्द गिर्द भी कितने ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह से दूर हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो भी तारीकी के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं. इफ यू आर अ शाइनिंग स्टार ऑफ जीसस, अगर आप मसीह के चमकते हुए सितारे हैं तो फिर आपने भी इसी सितारे की तरह जो ने मजूसियों के पास लेकर गया, आप भी सितारा बनकर लोगों को यीशु के पास लेकर आए ताकि लोग हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं. हालेलुया. तो मेरे अजीजों, आज से पहले अगर आप सिर्फ वैसे ही स्टार थे जो दीवार पर चिपका हुआ था, जस्ट लाइक अ आर्टिफिशियल स्टार, तो आज मेरे अजीजों
میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یو نیڈ ٹو ٹیک یور پوزیشن. آپ کو اپنی پوزیشن کو لینے کی ضرورت ہے. آپ کو وہ جگہ جو یسوع مسیح نے آپ کو دی, جو اتھارٹی یسوع مسیح نے آپ کو دی, یو نیڈ ٹو اسٹینڈ آن دیٹ پلیس. آپ کو اس جگہ پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اکثر اوقات وی ڈونٹ نو ہو وی آر ان کرائسٹ. اکثر اوقات ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم مسیح میں کون ہے. میرے عزیزو, جب آپ ریکگنائز کر جائیں گے کہ آپ کون ہیں, then you will be fruitful. پھر آپ بابرکت ہو جائیں گے. اور میرے عزیزو, اگر آپ مسیح کے شائننگ سٹار ہیں تو پھر 7 پروفیسیز جو متی کی انجیل پہلے اور دوسرے باب اور اسی طرح لوکا کی انجیل پہلے دوسرے باب کے اندر آپ کو ملیں گی, یہ وہ نبوتیں ہیں جب یسوع مسیح کی برتھ سے پہلے آپ کو یہ 7 پروفیٹک ورڈز جو ہیں وہ ملیں گے. اور پہلی بات, اگر آپ مسیح کے سٹار ہیں, ذرا چیک کیجئے آپ کے اندر یہ ہے کہ نہیں ہے. پہلی سب سے امپورٹنٹ بات, سیلویشن, نجات. اگر آپ مسیح کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں تو پھر آپ کے اندر نجات ضروری ہے. آپ کا نجات یافتہ ہونا ضروری ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں بعد میں لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 69 سے 77 ورس کے اندر. اس کے بعد دوسری آیت, دوسرا ورڈ, دیٹس فیور, خداوند کی فیور. اور اب ہم یہ فیور خداوند کے کلام میں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کو لوکا کی انجیل پہلے باب کی 28ویں آیت کے اندر یہ 7 پروفیسیز جن کا میں بات کر رہی ہوں, سم آر ڈائریکٹ, کچھ خدا کے خادمین نے ڈائریکٹ کی اور کچھ خدا کے خادمین کے ساتھ فرشتوں نے آ کر کی. تیسری بات جو آپ اگر مسیح کے شائننگ سٹار ہیں تو آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے, بلیسڈ, آپ برکت ہونے چاہیے. اگر آپ خدا کے کلام میں لوکا کی انجیل پہلے باب کی 39 آیت پڑھیں تو یہاں پر یہ نبوت جو ہے وہ الشبہ کے لیے کی گئی تھی کہ تو مبارک ہے. اس کے بعد میرے عزیزو, چوتھا ورڈ آف پروفیسی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آئی ایم اسٹار آف جیزس, گائیڈنس. پھر آپ خدا کے پاک روح کی ہدایت میں چلیں گے. اور یہ ہدایت فرشتہ نے کی تھی یوسف کے ساتھ خواب میں دکھائی دے کر. اگر آپ مسیح کے شائننگ سٹار ہیں تو then God will speak with you in dreams and vision. پھر خداوند آپ سے خواب میں, رویا میں کلام کرے گا. پھر آپ کی صلاح یسوع مسیح کرے گا. پھر آپ ڈگمگائیں گے نہیں. پھر جو ڈیسیژنز آپ نے لینے ہوں گے آپ پریشان نہیں ہوں گے, بلکہ خداوند آپ کو پراسپر کرے گا. میں آپ کو اپنی زندگی کی بات بتانا چاہتی ہوں. اگر کبھی کسی بھی چیز پر انسان ہوتے ہوئے مجھے سمجھ نہ لگ رہی ہو یا مجھے ڈاؤٹ فل لگے کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہو رہی یا کچھ ایسا ہے, ہم دنیا کے کسی بھی حصہ میں کیوں نہ ہو یا پاکستان میں کیوں نہ ہو, میں ہمیشہ فوراً سے پاسٹر عمران کو کہتی ہوں I'm not sensing something good about this. مجھے اس بات کے بارے میں اچھی فیل نہیں آ رہی. So let's pray together. جیسے یہ ایسا محسوس ہو ہم دعا میں جھک جاتے ہیں. ہم خدا کو کہتے ہیں خداوند ہماری سوچ اور عقل کام نہیں کر رہی لیکن تیری کر رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تو خواب میں, رویا میں ہم سے کلام کر. اور جب ہم خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں تو خداوند ٹیڑھی راہوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. تو میرے عزیزو, اگر آپ مسیح کے شائننگ سٹار ہیں, نمبر 1 you have to get salvation. نجات کا تحفہ آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے. یسوع نے تو آپ کے لیے جان دے دی ہے. ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو نجات کا تجربہ نہیں حاصل کیا, جو گناہ کے اندر ہے. دوسری بات فیور, خدا کی فیور آپ کی زندگی میں ہو. پھر جہاں کہیں پر بھی آپ جائیں گے, اگر آپ مسیح کے شائننگ سٹار ہیں تو کسی کو کہنا نہیں پڑے گا کہ فلاں کام میرا ہو جائے. پھر آپ وہیں پر ہی ہوں گے اور خداوند آپ کے لیے ڈیوائن فیور کو جاری کرے گا. خداوند آپ کے لیے اپنے آسمان کو کھولے گا اور آپ خداوند کے جلال کی گواہی دیں گے اور پھر آپ بلیسڈ ہوں گے. اور چوتھی بات, you will receive guidance. پھر یہ تحفہ جو گائیڈنس کا ہے آپ کی زندگی میں ہوگا کہ خداوند آپ کی رہنمائی کرے گا. پانچویں بات, جوائے, پھر خوشی آپ کی زندگی میں ہوگی. کئی لوگوں کو دیکھو چاہے اکاؤنٹ بھرا ہو, پیسے ہوں, کھانا پینا سارا کچھ ہو, لیکن منہ پہ ان کے 12 ہی بجے رہتے ہیں.
कभी भी उनको मिल लें, आप उनको मिल के और ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे, आप उनको मिल के परेशान हो जाएंगे। लेकिन मेरा अजीजों, जो यीशु मसीह के शाइनिंग स्टार होते हैं, जब यीशु को आप दिल दे देंगे, जो खुशी आपको मिलेगी, कोई दुनिया आपसे उस खुशी को चुरा नहीं सकेगा। फिर हमेशा खुदावंद का नूर, खुदावंद की खुशी, खुदावंद की शादमानी आपकी जिंदगी में होगी। और मेरे अजीजों, ये हमें मिलती है लूका के इंजील 2 बाब की 8वीं से 10वीं आयत, और ये गड्डरियों के लिए है। अगर आप उस हवाले को पढ़ें तो गड्डरिये क्या थे? नहायत खुश हुए, शादमान हुए। और उसके बाद मेरे अजीजों 6 prophecy, that's redemption, यानी मखलसी, कफारे की, वो हमें लूका के इंजील 2 बाब की 36वीं आयत के अंदर खुदा के कलाम में मिलती है। Praise the Lord। लूका की इंजील उसका 2 बाब आप लिख सकते हैं, आप बाद में जरूर इन हवाला जात को पढ़िएगा। लूका की इंजील 2 बाब उसकी 36 till 38। हालेलुया। और यहाँ पर हम 38 वर्स पढ़ते हैं, और वो उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र करने लगी, और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतज़िर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। वो लोग जो छुटकारे के मुंतज़िर थे, आज भी बहुत से लोग हैं जो छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट छूट नहीं रही, तरह तरह की लानतों के अंदर है, मुश्किलात के अंदर फंस चुके हैं, छुटकारा नहीं मिल रहा, रिहाई नहीं मिल रही। तो मेरे अजीजों, ये हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं, जब आप मसीह के शाइनिंग स्टार होंगे, हर तरह की लानतों से, हर तरह की मुश्किलात से, हर तरह की परेशानियों से आप छुटकारा पाएंगे। छुटकारा यानी मुकम्मल खलासी, दोबारा आप किसी भी बात के अंदर ट्रैप नहीं होंगे। और 7वीं बात, you will receive peace। और 7 बातों के बाद we will complete the 7 words of prophecy over you and your family। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इन 7 बातों के लिए। 7 बातों के बाद हम देखते हैं 7 कामयाबियत का अदद है। And I just speak 7 words of Christmas for you। हम इन अल्फाजों को ऐसे ही ले लेते हैं, 7 words of क्रिसमस। मैं चाहती हूँ इस क्रिसमस के सीजन के अंदर सेलिब्रेशन आपकी जिंदगी में आ जाए। You will be highly favored by the grace of God। You will be blessed। You will receive guidance। You will receive joy। ऐसी खुशी आपको मिल जाए, इधर उधर चाहे गम भी क्यों ना हो, आप जहां पर जाएं, you will become the change maker। You will become the atmosphere change maker। आप जहां पर जाएं वहां पर गम को खुशी में तब्दील करें। आपकी जिंदगी के अंदर छुटकारा हो गुनाह से, मुश्किलात से, ना सिर्फ आपकी जिंदगी में बल्कि आप दूसरों के लिए छुटकारे का वसीला बन जाएं। और आखिरी बात जो पीस है, लूका के अंजिल उसके 2 बाब के 25वीं से 29 वर्स खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। और यहाँ पर लिखा, और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर था, और रूह कुदस उस पर था, और उसको रूह कुदस से आगाही हुई कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदावंद की हम्द करके कहा, आए मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुताबिक सलामती से रुखसत कर। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में होगा, जब आप मसीह के शाइनिंग स्टार होंगे, तो फिर वो कहता है, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए चाहता हूँ। फिर ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में पीस आएगा,
You will become peacemaker. आप ambassador of peace बन जाएंगे. जहाँ कहीं पर भी जाएंगे खुदावन की सलामती और खुदावन की सुलह को लेकर जाएंगे. आपके बोलने से हालात तब्दील हो जाएंगे. आपके बोलने से सुलह का एटमॉस्फेयर बन जाएगा. तो मेरे अजीजों, आज इस क्रिसमस के मौका पर, इस खूबसूरत महीना के अंदर आपने कहा आई एम अ शाइनिंग स्टार ऑफ क्राइस्ट. मैं मसीह का चमकता हुआ सितारा हूँ. तो मेरे अजीजों, मैं चाहती हूँ कि जो चमकते हुए सितारे के अंदर ये 7 क्वालिटीज होनी चाहिए, ये 7 ब्लेसिंग्स होनी चाहिए, ये 7 प्रोफेसीज नीड टू फुलफिल्ड, वो आज आपकी जिंदगी में आए. अगर आप मसीह के सितारे हैं लेकिन यू आर नॉट बीन एक्टिवेटेड, अभी तक आप एक्टिवेट नहीं हुए, और यू हैव नॉट बीन ऑपरेटिंग इन द होली स्पिरिट, आप होली स्पिरिट में ऑपरेट नहीं कर रहे, तो आज आपके लिए मौका है मेरे अजीजों, दैट यू विल फुली इक्विप, आप फुली इक्विप्ड हो जाएं, यू विल बी फुली लोडेड, आप फुली लोडेड हो जाएं इन 7 वर्ड्स ऑफ क्रिसमस के साथ, इन 7 ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिसमस के साथ, ताकि आपकी जिंदगी के अंदर सेलिब्रेशन हो. ना सिर्फ आपकी जिंदगी में सेलिब्रेशन हो, आप दूसरों को निजात का रास्ता दिखाएं, आप दूसरों को यीशु के पास लेकर आएं. खुदावन की फेवर आपकी जिंदगी में हो, आप बाबरकत हो, आप खुदावन से रहनुमाई पाए, खुदावन की खुशी आपकी जिंदगी में आ जाए, आप छुटकारा पाए, मखलसी पाए मुश्किलात से, परेशानियों से, हर तरह के दुखों से, और आप अमन और सलामती को हासिल करें. हालेलुया. तो कितने हैं जो मसीह के शाइनिंग स्टार हैं? हालेलुया. आए फिर सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं. जितने लाइव देख रहे हैं, अगर आज से पहले आप सिर्फ नाम का सितारा था, तो मेरे अजीजों, मेरे बहनों, भाइयों, टुडे गॉड वांट टू मेक यू अ रियल स्टार. आज खुदावंद आपको हकीकी सितारा बनाना चाहता है. आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने आप को स्टार तो कहते हैं, कई फ्लॉप स्टार भी होते हैं, कई जो है वो हिट ही नहीं होते. दाइम साहब ऐसे ही है. तो मेरे अजीजों, यीशु ने जो आपको सितारा बनाया ना, वो आपको चाहता है एवरग्रीन स्टार, ऐसा सितारा जो हमेशा हरा भरा रहे, ऐसा सितारा जो हमेशा टॉप पर रहे, ऐसा सितारा जो दूसरों के लिए हमेशा रहनुमाई का, बरकत का, तरक्की का वसीला बने. ना सिर्फ खुद बरकत हो बल्कि दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बने. आए अपने दोनों हाथों को फुली तौर पर आसमान की तरफ बुलंद कीजिए. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पीछे भी हाथ नीचे आए, फुली तौर पर अपने हाथों को बुलंद कीजिए. खुदावन, हम तेरा शुक्र अदा करते आज के खूबसूरत कलाम के लिए, खुदावन इन 7 वर्ड्स ऑफ क्रिसमस के लिए, खुदावन आज इन खुदावन शाइनिंग स्टार के लिए जिन्हें तूने बनाया, खुदावन इनके लिए तेरी बरकत चाहती, इनके लिए तेरी ब्लेसिंग को चाहती. खुदावन आज से पहले अगर ये इन 7 गिफ्ट्स ऑफ क्रिसमस में ऑपरेट नहीं कर रहे, खुदावन आज के बाद इनकी जिंदगी के अंदर सेलिब्रेशन, favor, blessing, guidance, joy, they will experience redemption. हर तरह की बीमारियों से मखलसी, मुश्किलात से मखलसी, दुखों से मखलसी, हर तरह की तकलीफों से छुटकारा पाओ और खुदा के पीस को हासिल करो. खुदावन की खुशी आपकी फैमिलीज में एंटर हो रही है. आज के बाद आपके घरों के अंदर खुशी और शादमानी आए, ताकि खुदावन जैसे वो सितारा उन मजूसियों को यीशु के पास लेकर आया, खुदावन ये भी तेरे शाइनिंग स्टार बनकर बहुतों को यीशु के पास लाए, बहुतों के लिए नजात का, तरक्की का वसीला बने. खुदावंद इस माह के अंदर जो दुख में है, जिनके पास खुदावंद रुपया पैसा नहीं है, हम उनके लिए तेरी बरकत चाहते. खुदावंद हमें फजल बख्श, बीइंग अ हार्वेस्ट चर्च, बीइंग अ हार्वेस्ट फैमिली, इस महीने में खुदावंद हम बहुतों की मदद कर सके, बहुतों के लिए क्रिसमस पर बरकत का, खुशी का वसीला बन सके. ये क्रिसमस खुदावंद हम सबों के लिए, हमारे खानदानों के लिए बरकत का, न्यू लेवल का, न्यू अनॉइंटिंग का वसीला बने, मसीह के नाम से आमीन, आमीन. प्रेज द लॉर्ड. कितने लोगों को कलाम के वसीला से बरकत मिली है, और कितने मसीह के शाइनिंग स्टार हैं. प्रेज द लॉर्ड. तो फिर खुदावंद की खुशी जो आपकी जिंदगी पे है, जरा हंसते हुए अपने हाथों को लहराइए. प्रेज द लॉर्ड. और जो आपके साथ खड़ा खड़ी है, उसे कहिए
چاہیے. I am a shining star of Jesus. Praise the Lord. آپ سبوں کو میری کرسمس. خداوند آپ کو برکت دے. God bless you.